हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी विंग्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10+2 लेक्चरर का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, दैट इज OAS, वाज इस्टेब्लिश इन। तो कब बना था OAS? ये बना था 1948 में। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ NATO वाज अटेंडेड बाय हाउ मेनी नेशन? तो ये अटेंड की थी 12 नेशंस ने। नेक्स्ट, द वार्सा पैक्ट वाज established to set up a system of collective security for. The right answer is East European countries. The term Cold War was coined by. कोल्ड वार किसने काइन की थी? तो ये काइन की थी बर्नार्ड बरूच ने। बर्नार्ड बरूच। नेक्स्ट, Truman Doctrine was a proposal to send military and economic aid to Greece and Turkey. Next, in 1963, both the USSR and USA were closely linked by Hotline Agreement. Next, the term detent. The term detent is used for. तो क्या है ये? A process of normalizing a relationship between two power camps. दो पावर कैंप्स के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? डिटेंट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिटेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खुर्शचेव एंड कनेडी। खुर्शचेव एंड कनेडी। नेक्स्ट, which of the following was important event in the process of detent? The right answer is Interior Agreement on Strategic Arms Limitation. Interior Agreement on Strategic Arms Limitation. Next, which of the following has led to the commencement of new Cold War? The right answer is Soviet intervention in Afghanistan. Concept of balance of power depends on the fact of equilibrium. Equilibrium. Next, the old concept, that is balance of power, has been replaced by a new known as क्या है? बाइपोलराइजेशन। किसे रिप्लेस किया बैलेंस ऑफ पावर को? बाइपोलराइजेशन। Which of the following is incorrect model of Morton A. Kaplan for global political organization? तो कौन सा इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट मॉडल है मॉर्टन ए कैप्लन का फॉर ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज क्लासिकल मॉडल। A model in which nation states abide by legal and moral restrictions voluntarily is collective security model. Which article of the Covenant of the League of Nations expresses its concern with the collective security system? Article 11. The Uniting for Peace resolution was passed in, कब पास हुआ था? 1950, 1950. In which crisis General Assembly took action under the Uniting for Peace resolution? The right answer is Suez crisis
1956. In which crisis the Security Council was able to take collective action against aggressor? The right answer is Korean War 1950. A formula that compatibility between regional and global organization was evolved at San Francisco Conference. Which of the following is not functional organization? तो कौन सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनमें से? ओफी, ओ ए एफ आई. Socialism is opposed to. Socialism is opposed to what? Opposed to unrestricted competition. Who gave the concept of equilibrium in political system? तो किसने दिया था? मॉर्टन ए कैप्लान. मॉर्टन ए कैप्लान. Next, the decision making approach is criticized because it gives importance to personality. Yes. It is dynamic in nature. Yes. It is state centric. Yes. The right answer is all of the above. General system theory aims at unification of all sciences. Idealist theory of rights lays emphasis on man's moral development. The League of Nations formulation aims at reduction of arms with of assistance of Permanent Advisory Commission. Washington Conference 1922 attended by three great powers, that is Great Britain, USA and Japan, proposed for limiting of naval armaments. Limiting of naval armaments. Treaty for the non-proliferation of nuclear weapon was signed in the year. कौन से ईयर में साइन हुई थी? 1968. Non-proliferation of nuclear weapons. The UN Disarmament Decode 1 was declared in 1972-1980. Atoms for Peace, Atom for Peace, that is Plan of International Development for Peaceful Uses of Atomic Energy was proposed. किसने प्रपोज किया था? Proposed by President Eisenhower. Eisenhower, who said that the state is expansion of family. State expansion है family का किसने बोला था? अरिस्टोटल ने, who is also called as father of political science. According to Locke, people in the state of nature had both rights भी और duties भी, as per Locke. 33. The social contract theory is based on what? Individualism. Social contract theory किस पे बेस है? Individualism पे. Rousseau hailed from, रूसो कहाँ से थे? फ्रांस से. Which of the following are the basic feature of Marxism? तो मार्क्सिज्म का बेसिक फीचर कौन कौन सा था? राइट आंसर इज क्या था? हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, यस. थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यस. थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, यस.
स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन, नहीं ये नहीं था। द राइट आंसर इज 1 2 3। मेन सपोर्टर ऑफ रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और, तो कौन थे मेन सपोर्टर? हैंस मॉर्गेंथो, हैंस मॉर्गेंथो। रियलिस्ट जो थे ये पॉलिटिक्स को कैसे देखते थे? रियलिस्ट रियलिस्ट सी पॉलिटिक्स हैज अ स्ट्रगल फॉर पावर। आइडियलिज्म बिलीव्स इन, आइडियलिज्म किस पे बिलीव करते थे? पावर ऑफ आइडियाज में। हु बिलीव्स दैट अ कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट शुड बी proportionate proportionate to its capabilities? Raymond Aron, Raymond Aron। Factor which contribute to the promotion of national interest is, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के पे कंट्रीब्यूट करते हैं? डिप्लोमेसी, यस। प्रोपोगेंडा, यस। रिलीजन, यस। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज नॉट नोन एज, तो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में क्या नहीं आता? इकोनॉमिक थ्योरी, यस आता है। मोनिस्टिक थ्योरी आता है। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी आता है। सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी नहीं आता। राइट आंसर इज डी। वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड, वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड आफ्टर जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन के बाद वोट ऑन अकाउंट पास होता है। द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, परफॉर्मेंस बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1968 में। नेक्स्ट, फर्स्ट कमेटी टू रिकमेंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ombudsman टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज संथानम कमेटी। कौन सी कमेटी थी? संथानम कमेटी। 44B। 45, which of the following is not a formal instrument of executive control our administration? तो political direction, yes। personal management, yes। ordinance, yes। the right answer is professional ethics, इसमें नहीं आते। which of the following writ is not a specifically provided in the constitution of India? तो कौन सी रिट नहीं है? प्रोहिबिशन, यस है। मैंडेमस है। क्यू वारंटो है। इंजंक्शन नहीं है। राइट आंसर इज बी। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इज अंडर, तो पब्लिक इंटरप्राइज किसके हैं? हम सबको पता है किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के। प्लानिंग कमीशन इज डिस्क्राइब्ड एज द इकोनॉमिक कैबिनेट बाय अशोक चंदा। द सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज, तो क्या है ये? स्टाफ एजेंसी। सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है? एक स्टाफ एजेंसी। origin of UPSC can be traced from 1909 Act 50A. Who held the view that economic development is gradual and continuous process? Economic development एक gradual और continuous process है। किसने बोला? अल्फ्रेड मार्शल। 51C। 52, the classical thinker envisaged development without interference of government। क्लासिकल थिंकर क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कैसे होगी? विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बगैर। 53, द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आर इन फेवर ऑफ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट किसके फेवर में है? इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। 54, द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया आर प्रिजाइडेड बाई, तो हमें पता है कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। 54A, सोवरेनिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, सोवरेनिटी किसका एट्रीब्यूट्स होता है?
तो ये एट्रीब्यूट है ऑल स्टेट्स का। एडमिनिस्ट्रेशन वुड डिफर फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन डिफर करता है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या एक्सप्लेन करता है? द वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्डो, यस सही मैच है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बाय एडवर्ड विडनर, ये भी सही है। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एफ.डब्ल्यू. रिग्स, सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट रॉबर्ट डॉल, ये रॉन्ग है। सो 58, 57 सी। 58 प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल मीन्स। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन effectively direct। 59 the principle of supervision is inherent in the principle of hierarchy। according to which theory leadership is a multi-dimensional। तो किस थ्योरी के तहत लीडरशिप मल्टी डायमेंशनल है? सिचुएशनल थ्योरी। which of the following statements regarding fundamental duties in the Indian Constitution are correct? Fundamental duties can be enforced through writ jurisdiction, no, गलत है। Fundamental duties have formed a part of Indian Constitution since its adoption, नहीं, बाद में लाई थी। Fundamental duties became a part of Constitution in accordance with recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था। ट्रू स्टेटमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 and 4 मीन्स डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर मीन्स। तो क्या मतलब है इसका? फिलॉसफी ऑफ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। 63 एलिमेंट प्रेजेंट्स अ डैश डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो कौन सा डिवीजन है ये? ट्राइपार्टाइट डिवीजन। 64 द पॉलिटिकल कल्चर approach being a derivative of political development is not reactionary। 64 B। 65 which of the following studied the concept of political development with the application of political culture? तो कौन थे? डेविड एस्टन। nationalism promotes spirit of patriotism। imperialism is the high stage of capitalism is associated with Lenin, who defined imperialism as control over non-white races by Western states by force। Who defined imperialism as control over non-white races by Western nation states by force? The right answer is Hans Kohn। Which of the following is not a cause of rise of imperialism? तो कौन सा काज नहीं है? डिजायर फॉर पावर, ये तो है। डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट, बिल्कुल है। इकोनॉमिक नेसेसिटीज, बिल्कुल है। हेल्पिंग द पुअर पीपल, हेल्प कहाँ? ये तो खून चूसते थे। राइट आंसर इज डी। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज रिटन बाय। तो नेशनलिज्म का आइडिया किसने लिखा था? हंस कॉन ने। हंस कॉन। 70 ए। नेक्स्ट 71
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ कोल्ड वार? तो कोल्ड वार का काज कौन सा नहीं था? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यस ये तो था। डिवाइस टू गेन सुपरमेसी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, ये भी था। अ चेन ऑफ अलायंस मिलिट्री इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टू एंजॉय सपोर्टर ऑफ द अदर कंट्रीज, ये भी था। कौन सा नहीं था? यूएसए यूएसए एंड एलीज फेवर्ड कम्युनिज्म एंड एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इट, नहीं ये तो उल्टा बोल दिया। राइट आंसर इज डी 72। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड वाज अडॉप्टेड बाई, तो नॉन अलाइंड की पॉलिसी किसने अपनाई थी? नॉन अलाइंड की पॉलिसी अपनाई थी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ने। 72 बी। नेक्स्ट 73। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एफ्रो एशियन कंट्रीज नॉन एज कोलंबो ग्रुप वाज हेल्ड एट बैंडुंग, कहाँ हुई थी? बैंडुंग में। 74। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज वाज हेल्ड इन, कब हुई थी? 1961। It is said that non-aligned has lost its relevance because world has transformed into unipolar system. The doctrine of passive resistance was written by Shri Aurobindo Ghosh. गांधी जी ideas of welfare state claimed that, तो गांधी जी का आइडिया क्या था वेलफेयर स्टेट का? टू हैव अ बैलेंस डाइट एंड डिसेंट हाउस टू लिव, बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ वंस चिल्ड्रन, बिल्कुल। एडुकेट मेडिकल रिलीफ, बिल्कुल। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हु सेड दैट द कंसेप्ट ऑफ पावर इज फंडामेंटल इन पॉलिटिकल साइंस, किसने कहा था कंसेप्ट ऑफ पावर फंडामेंटल है पॉलिटिकल साइंस में? हरोल्ड लेसवेल ने, हरोल्ड लेसवेल। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पावर इज गेन थ्रू, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर कैसे गेन होती है? इलेक्शन के थ्रू। 79 सी 80। हु रोट द बुक पावर एंड सोसाइटी, पावर और सोसाइटी बुक किसने लिखी है? लेसवेल ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एक्सपीरियंस फुली, तो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 1957 में। 2019 में खत्म भी हो गया। ताशकंद डिक्लेरेशन वाज हेल्ड इन, तो ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुई थी? 1966। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन, कब साइन हुई थी? 1846। जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट्स, तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 2019 से पहले 22 थे, फिर लद्दाख अलग हो गया, तो अब कितने हैं? अब 10 जम्मू प्रोविंस में, 10 कश्मीर प्रोविंस में। राइट आंसर इज 20। तो ये यहाँ गलत दिया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 20। जापान विथड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम, सॉरी 84 85, यस। जापान विथड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द लीग इन, तो जापान ने लीग से कब मेंबरशिप अपनी विथड्रॉ की थी? द राइट आंसर इज 1934, 1934 में। 85 बी। 86। द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न स्टेट वाज लेड डाउन बाय ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। द बुक उतोपिया, द बुक उतोपिया इज रिटन बाय, तो किसने लिखी? थॉमस मोर। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन began with concept of Europe। 89। Idea of federal system in India was first mooted in the Act of 1935। Constitution described India as Union of States। 1991 to 2000 AD has been designated as
designated as Sark Decade of Girl Child. Sark Decade of Girl Child. सार्क फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. सार्क हैज डैश मेंबर स्टेट्स. तो सार्क के कितने मेंबर होते हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस ग्रुप के टोटल कितने मेंबर हैं? तो ये हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, रॉन्ग ऑप्शन में नहीं है. 8 मेंबर हैं टोटल. कितने मेंबर हैं? 8. कौन कौन से? इंडिया 1, पाकिस्तान 2, नेपाल 3, श्रीलंका 4, बांग्लादेश 5, भूटान 6, मालदीव्स 7 और अफगानिस्तान 8. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट. तो HRD सेंटर सार्क का कहाँ है? SAARC का कहाँ है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में. यूनिफाइड मिलिट्री कमांड ऑफ सोवियत dominated alliance was dissolved in 1991. First UN conference on law of sea is known as. तो क्या कहते थे? वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस. A neutral state is. न्यूट्रल स्टेट क्या होती है? A state which does not participate in war. दो कंट्रीज की वार चल रही है और थर्ड स्टेट जो उसमें न्यूट्रल रहे. A state which does not participate in other countries war is a neutral state, जो न्यूट्रल रहे. 96 B. Next, 97. The year 1994 was declared by the UN as. तो क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली. अपेर्थाइड, जो काला गोरा के भेदभाव वाली मूवमेंट चली थी साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में बात कर रहे हैं. द मोस्ट सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज प्रैक्टिस बाई. तो बोल ही दिया हमने, क्या थी? साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने स्टार्ट किया था इसके खिलाफ बोलना, और बाद में नेल्सन मंडेला ने काम किया था. नेल्सन मंडेला इज आल्सो कॉल्ड एज गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका. हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लीग सेक्रेटरीट? तो कौन है? ट्राइक्यूलाई. 100. Which of the following correctly encompasses the scope of political science? The right answer is state and government. Which of the following is not the official language of UNO? तो UNO की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, स्पेनिश, अरबिक, इंग्लिश है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन began in 1946. Began in 1946. Which of the following countries does not belong to G7? तो चाइना G7 से बिलोंग नहीं करती थी. 100-05. हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज सिचुएटेड एट. तो कहाँ है? जकार्ता में. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हैज 35 members. यूनाइटेड नेशन वाज अ नेम काइंड बाय. तो किसने काइंड किया था? रोजवेल्ट. The work of General Assembly is divided between 6 main committees. International Labour Organization was established in. कब established हुई थी? 1919. UNESCO came into being on
1946. Liberalism flourished maximum in England. Socialist lay emphasis on, तो किस पे करते हैं एम्फेसिस? सोशलिस्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी पे. Lenin held that export of capital lends to arrest development in capital exporting. Arrest development in capital exporting. Limited monarchy is a system of government in which the power of rulers are. तो लिमिटेड मोनार्की क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जिसमें रूलर्स की पावर को क्या किया जाता है? लिमिट किया जाता है. लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश colonialism resulted in, तो क्या हुआ था? ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम. सॉरी, क्या हुआ था? ग्रेटर पॉवर्टी ऑफ पीपल. ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से क्या हुआ था? ग्रेटर पॉवर्टी ऑफ पीपल. 115 के साथ सी, नॉट डी. जनरल विल मीन्स, तो जनरल विल्स का क्या मतलब होता है? द विल दैट इज द बेस्ट फॉर इंटायर कम्युनिटी. पूरी कम्युनिटी के लिए जो बेस्ट विल हो उसको कहते हैं क्या? जनरल विल. Who made a distinction between structural analysis and functional analysis? तो डेविड एप्टर. फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को. राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर द सेकंड ने. और किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके सती सिस्टम को एबॉलिश किया था. कब? 1829 में. नेक्स्ट, किसने कहा था कि अगर भगवान भी बोलेगा कि अनटचेबिलिटी मैंने स्टार्ट की है तो मैं उसको भी नहीं मानूंगा? तो ये फेमस लाइन किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे. इन्होंने ये भी बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट. आज़ादी मेरा पैदाशी हक है और मैं लेके रहूंगा. गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन 1931. गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में. इरविन कौन थे? ये वाइस राय थे तब इंडिया के. फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें.